Okay, guys. Yes. So hi guys, welcome again to Conversation with Wing Commander सोनिका तंवर मैम। हम लोगों ने पार्ट 1 देखा जहाँ पे हमने 3 क्वेश्चंस कवर किए मैम ने एंड रिलीवेंट क्वेश्चंस थे। आई होप यू विल टेक अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम देम। अभी वी विल अगेन कंटिन्यू द कॉन्वर्सेशन इन द सेम मैनर and ma'am will be answering you because I already told you this session is not about me, about us, it is about you. एंड हम हमारे पास लगभग 25 मिनट के आसपास होंगे जहाँ पे आप अपने सवाल मैम से पूछ सकते हो। अगला क्वेश्चन मैम, अंकित वाज आस्किंग, अंकित हैज रेज्ड हैंड एंड देन अंकित प्लीज गो अहेड विद योर क्वेश्चन। अंकित, Good evening, sir. Good evening, ma'am. गुड इवनिंग। Evening, Ankit. Ma'am, I got two questions regarding the SSB. Ma'am, the first question is on how to introspect ourselves, ma'am, for the SSB. Like what type of qualities and the competence we should have for the for the SSB. And ma'am, second one is that uh, I have my seniors, ma'am. Actually, those who are in academy right now. I have seen them from from changing the like from changing from a cadet to like officer, ma'am. Their personality completely changes. Their way of speaking and the behavior, personality, everything, ma'am. So how can we get that qualities like them? Great. Thank you for your question, Ankit. Very relevant question. So, coming to the first question, and a very genuine question you have asked, that how do we introspect? So, see, this complete, the process of, evaluating the person during the SSB is based on a very simple underlining principle that are you a person who can be groomed from a cadet or from a normal the person into a leader, and not only any normal leader, I would say, but into a armed forces leader, because armed forces leader have to have certain skills which normal leading scenarios, those would, I think there is some disturbance. Okay. So introspection, when it comes to introspection, Ankit, see, when Sachin Tendulkar went for the SSB, he could not clear it. When APJ Abdul Kalam, when Dr. APJ Abdul Kalam went for SSB, he could not clear the SSB. But does that make them less of leader in their respective field? Wo, they have done something which nobody else could have done, right? So, but in SSB, the what your qualities are being checked is that you have to, the ultimate aim of being in armed forces is what? To fight and win wars. तो थोड़ा reverse engineering करोगे, so you have to have that confidence and that initiative taking capability कि पूरी team को you can motivate to get into the war and not only strategize and fight it, but throughout the team has to be motivated. So एक बार तो एम से पीछे जाकर देखोगे, आर यू दैट पर्सन कि अगर आसपास कुछ हो रहा है, आर यू दैट पर्सन हु गेट्स अप कि लेट मी ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। डेली वी गो आउट फ्रॉम आवर सोसाइटीज, क्या वहां पर कुछ है, लाइक एनीथिंग कैन वी डू अगर बाहर देर इज गार्बेज आउटसाइड सोसाइटी? सो ऑलवेज से दिस, being a true SSP aspirant or climbing that journey to be an officer is a way of life. It is a lifestyle. आप एक ही दिन में you cannot force those qualities. लेकिन अगर आप में वो qualities थोड़ी बहुत भी है, अगर आप initiative ले सकते हैं, if you are somebody who does not give up when the problem comes in, you do not leave your men behind. When I say men behind, like you do not leave your friends, जो अगर if they are in some problem, चाहे आप सॉल्व कर पाओ नहीं कर पाओ, बट योर इंटेंट इज टू ट्राई टू सॉल्व इट, राइट? यू आर नॉट अ सुपर ह्यूमन बीइंग की चलो सब सॉल्व हो जाएगा। अगर आप में वो बेसिक क्वालिटीज हैं, तो ये पूरा ट्रेनिंग प्रोसीजर ग्रूम्स यू टू डेवलप देम। एंड इसीलिए आपके जो फ्रेंड्स हु वेंट देयर एज कैडेट्स came out as shining officers because they were groomed to undertake those qualities, and when they go in the real field they apply them। और जो एक्सपीरियंस से सीखते हैं ना अंकित, वो नो बुक्स कैन टीच यू, नो एवरीबडी कैन गाइड यू,
बट वो एक्सपीरियंस आई अर्ज यू, अगर आपको इंट्रोस्पेक्ट करना है डे टू डे लाइफ में, सुबह से शाम तक आप जो जो काम करते हो, जस्ट ट्राई एंड कीप दैट प्राइड इन यू दैट यू आर ऑलरेडी एन ऑफिसर। लेकिन आर यू कंडक्टिंग योर सेल्फ दैट वे? अगर आप कर रहे हैं वैसे, देन यू, यस, एब्सोल्युटली यू आर वर्दी ऑफ बीइंग एन ऑफिसर, इररिस्पेक्टिव आपको इंग्लिश आती है नहीं आती, आपका प्रोनाउंसिएशन सही है कि नहीं है। इफ यू हैव दोस क्वालिटीज विच मेक्स यू स्टैंड आउट, कि आप लीड कर सकते हो, यू दे विल पॉलिश यू, यू नो, फोर्सेस विल पॉलिश यू, बट क्वालिटीज चेक करेंगे आपके एसएसबी के अंदर। तो वो आपका इंट्रोस्पेक्शन भी हो जाएगा एंड चेंज ऑफ पर्सनालिटी भी हो जाएगी, विच यू सी इन योर यू नो सीनियर्स और क्लासमेट्स। So I hope I have answered both the questions. अंकित, आई होप यही चीजें यू विल लुक इनटू दिस एंड देन इसको आप इम्प्लीमेंट करोगे, एंड देन लाइफ में आगे वाले एसएसबीज में प्रॉपर इंट्रोस्पेक्शन के साथ जाओगे। यस मैम, ही हैज गॉट द आंसर। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग इतना ब्रीफ में आंसर, बिकॉज दीज किड्स एक्चुअली नीड इट मैम। अब आपसे सुनेंगे तो यू हैव बीन देयर डन दैट, तो शायद मेरी बातें तो कभी कभी ये लोग नहीं मानते, आपकी बातें शायद मान लें और उनके उन अरे, इम्प्लीमेंट कर लें, तो आई वुड से कि इन्हीं को बेनिफिट है। यस, द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी कमिंग फ्रॉम आई वुड से जैनिस। Janice, please go ahead. You can ask your question. Please go ahead. Okay, let me. Good evening, ma'am. Yes. good evening, Janish. Yeah, please tell me. Uh, Ma'am, I'm sure that Indian Defense Forces is completely gender neutral, but as you have served into the Defense Forces for last 14 years, what are the challenges as a woman officer you face during your tenure? Okay, I was just checking my video. Okay, thank you, Janish, for your question. Okay, so challenges as a women officer. I would say, Janish, see, when you are trained as an officer, so this whole concept of, you know, women officer or male officer, that actually does not you know, fructify when you are working in the domain. And that concept, you know, every forces, you know, every organization takes its roots from the social structure, which is a very true norm. Okay. So yes, the initial stage of when women officers were being getting inducted to forces had been difficult, because, you know, to accept a change all of a sudden, it takes time. I wouldn't say that intent is not there, but it takes time to normalize it. So I have heard from very senior women officers that times were difficult when they got into the service. But now, as a society, we have matured a lot. As a nation, we have matured a lot. And as armed forces also, when it comes to, you know, seeing women also in forces, we have matured to a very large extent. So if I talk about my personal journey, I would say I did not have any gender specific issues wherein I anytime felt that I shouldn't have been in this organization. No, because this is a doubt that comes to it's a male dominant organization, right? But the contribution by women officers is not undermined, and this doubt many women aspirants they do ask me, so I can connect from where the question is coming. But I can assure you that having gone through these 14 years, I was evaluated as an officer. Okay, irrespective of the background that I come from, irrespective of the education that I have taken, and irrespective of the gender. But the challenges in the mindset which a human being carry forwards from the society are there in their minds, which at times, you know, can koi soch sakta hai, it can affect their thinking. But till the time you are doing your job, you are in a beautiful organization, because at the end आपका काम एंड आपका लाइक आपकी कमांड इज व्हाट इज डिफाइनिंग यू, नॉट योर जेंडर और नथिंग एल्स। सो नॉट लॉट ऑफ challenges, but हाँ, मेरी वजह से बाकी लोगों को काफी challenges रहे होंगे which maybe, you know, we can talk about some other time. But it's a beautiful organization to work in, Jenish. No, you don't have to worry about if your sister or somebody who you know wants to get into forces. It's a great place to work, and in fact I can you know, correlate it with the corporate, because now I'm on the other side. My goodness, I would say
armed forces were much, much, much better, because they would listen to you as an officer. वो शायद वो सोसाइटी का ज्यादा प्रेशर यहाँ है towards the second side of the world, and not into the armed forces. When you wear uniform, you are simply an officer, right, Janish? Yes, ma'am. Exactly, ma'am. Even now, the forces are starting enrolling women into the defense schools like Sainik School, and they are opening separate Sainik schools for the women. So, in upcoming time, we will see rise in the women participation. Absolutely, Janish. Thank you, Amazing, ma'am. amazing question, Thank brother. I hope it satisfied your curiosity out of it. Thank you, ma'am. Thank you so much for putting forward your points on this. एंड मेरे हिसाब से मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस यही है कि फौज में ऑफिसर इज एन ऑफिसर, जेंडर बायस तो नहीं होता, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट। आई वर्कड इन कॉर्पोरेट फॉर अराउंड 8 years। हम तो देखते थे आंखों से। एंड कि थोड़ा सा कहते हैं कि लेडी लेडी लीडर्स को थोड़ा सा प्रमोट ज़्यादा नहीं किया जाता, कम किया जाता है। बट यहाँ पे आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया इज एज सच कि यू आर क्रैकिंग एसएसबी, यू आर गेटिंग थ्रू द एसएसबी, एंड देन सबको इक्वल मौका मिलता है। अभी परमानेंट कमीशन रोल में आर्मी में देर आर कमांडिंग ऑफिसर्स ऑल्सो। आपने खुद मैम यूनिट कमांड की है, तो यू कैन आई थिंक इजीली कनेक्ट विद इट। आई वुड encourage kids, please ask your question, we have few more minutes left guys, if you have any more questions please ask। मैं इनकरेज करूंगा, ऐसा मौका शायद आपको वापस ना मिले, तो आप क्वेश्चन पूछो। नहीं तो फिर मेरा एक क्वेश्चन आएगा मैम के लिए, देवेश का क्वेश्चन No, but आएगा। there is something, Shivam, I also want to tell the students. Maybe after this question, I have certain things that I would like to tell them who are going to appear for SSB. यस मैम प्लीज। पहले देवेश एंड आर्यन की क्वेश्चंस आ रहे हैं, बट आई वांट यू Sure. टू फिनिश योर पॉइंट, जो आप बोलना चाहते हो आप बताओ पहले, फिर इनके क्वेश्चंस लेता हूँ। Acha, okay. So, see, when we are aspiring for SSB, because see, I have been there. I cracked my SSB in the first attempt, but I know what kind of pressure we have. हम्म। So especially in the interviews when we go, right? So that pressure mounts up to you so much because in other activities you are still performing, right? So a diversion ho jata hai. But when you are going for the interviews, there are a couple of things you have to keep in mind. Firstly, I don't know, like whatever helps you. For me, the breathing exercises did help because till the time you are not calm, you are not resilient, you will not be able to answer properly. इसीलिए please start developing these techniques wherein some people do it fist close करने से they feel at ease. Some people, when they clutch their feet, they feel at ease. Please devise your method. आपको क्या चीज at ease देती है, बिकॉज इंटरव्यूज में यू हैव टू मैच द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंटरव्यूअर। तो अगर वो इंटरव्यूअर बहुत तेज बोल रहा है, यू हैव टू मैच इट, अदरवाइज गुड कॉन्वर्सेशन का कनेक्शन का रूल है ये। सो व्हेन यू हैव टू मैच इट, यू हैव टू बी काम टू नोटिस, ठीक है, और उसी से आप क्वेश्चंस समझेंगे। एंड नेवर शाई ऑफ फ्रॉम एक्सेप्टिंग योर फेलियर्स इन द इंटरव्यूज प्लीज। कभी ये मत सोचना कि आपको ये दिखाना है कि यू आर अ सुपर हीरो, आप पहले से ही एक बने बनाए ऑफिसर हो। नहीं, वो नहीं देख रही है। दे डोंट रिक्वायर कि आपके अंदर वो सब क्वालिटीज ऑलरेडी हो। यू शुड बी एबल टू बी ग्रूम टू एन ऑफिसर लेवल, ओके। तो इसलिए एक्सेप्ट अगर आपके फेलियर्स हैं, दे विल इंटेंशनली आस्क यू क्वेश्चंस जिसमें आपको ये बताना होगा कि हाँ कुछ फेलियर्स थे, बट हाँ यू ऑल्सो टेल कि आपने क्या सीखा उस फेलियर से, राइट। तो ये काम रखना खुद को, इंटरव्यूअर की पिच को मैच करना, एंड देन आराम से, बिल्कुल विदाउट फेकिंग एनीथिंग, just answer, just tell who you are. So these are the three tips I wanted to tell you before the session ends. Now we can take on other questions. एंड इसी में मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा मैम। अमेजिंग पॉइंट्स हैं और बहुत अच्छे आपने ये बात बोली। आई एम ग्लैड यू सेड इट, बिकॉज बॉडी लैंग्वेज एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है किसी भी एसएसबी में, या इन केस अदर एसएसबीज इंटरव्यूज ऑल्सो पर्टिकुलरली। तो यहाँ पे मैं बच्चों को बोलूंगा, इफ यू आर जस्ट लिसनिंग टू मी, वेदर यू आर ऑन यूट्यूब और यू आर लाइव इन दिस सेशन, एक टेडेक्स में आपको रिकमेंड करता हूँ जो मैंने भी यूज किया है। योर बॉडी लैंग्वेज शेप्स हु यू आर बाई एमी कडी। आई वॉन्ट यू गाइज टू वॉच इट। इफ यू वॉच इट, Great. यू विल लर्न अ लॉट। आपको पता लग जाएगा कि नर्वसनेस कैसे दूर करनी है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करना है। बिकॉज मैम मेरे को याद है कि जब हम इंटरव्यूइंग ऑफिसर के रूम के बाहर बैठे होते थे ना, तो मतलब पसीना आ रहा होता था, दिमाग एकदम घूम जाता था कि यार अब तो मतलब इसके लिए पेपर पास किया था, द मोमेंट हैज कम, पता नहीं क्या पूछ लेंगे, बहुत मतलब एंजाइटी होती है।
सो जब आप उस TEDx को देखोगे, व्हेन यू वॉच दैट कन्वर्सेशन, मैं आप लोग जो भी ग्रुप्स में आप हो, मैं आपको लिंक दे दूंगा, आपको मेहनत नहीं करनी है, मैं दे दूंगा लिंक। यू जस्ट वॉच इट, मेक नोट्स, एंड देन इम्प्लीमेंट इट इन योर SSB, यू विल सी द डिफरेंस, एंड मेरे को आके बताना कि सर ये फायदा हुआ। ग्रेट टिप शिवम, ग्रेट। यस मैम, अगला क्वेश्चन हमारा है, देयर वाज अ किड हु वाज रेजिंग द हैंड, एंड उसका नाम है देवेश, देवेश, यस, देवेश ठाकुर वाज रेजिंग द हैंड। देवेश, प्लीज गो अहेड, आस्क योर क्वेश्चन। दिस इज द सेकंड लास्ट Ma'am, क्वेश्चन आई एम टेकिंग, गाइस। No, यस देवेश, प्लीज बोलो। am I audible, sir? यस यस, यू आर ऑडिबल, प्लीज गो अहेड। Oh, thank you. Ma'am, actually, yesterday I got conference out from FCAT, and actually, I wanted to ask in the continuation of Nani's question about interviewing officer, like, do they really check facts, uh, like having knowledge about the aircrafts or something like that? Because although I was not asked about any of such facts, but for the future reference, I want to know. Okay, so Devesh, first of all, my compliments to you because see, you have walked through the journey, and I always feel कि लाइफ में SSB इज वन इंटरव्यू जो आप चाहे बेशक किसी भी फील्ड में जाए, बट यू शुड अपीयर फॉर इट, राइट? बिकॉज दैट टीचेस द प्रोसेस टीचेस यू अ लॉट. But coming specifically back to your question, facts, they want to check, yes, how keen you are if you want to get into Air Force. The tendency would be, yes, you should be keen about कि हाँ अपनी एयर पावर कितनी है, नॉट इन स्पेसिफिक्स विद कि कौन कौन से एयरक्राफ्ट हैं एग्जैक्टली आपको पता होने चाहिए, कितने स्क्वाड्रंस हैं, नथिंग इन डिटेल, दैट इज नॉट द परव्यू ऑफ द इंटरव्यू और द SSB ऑल्सो. बट यू शुड बी कीन अबाउट, तो आपको, इफ यू आर टेलिंग कि आई एम पैशनेट टू ज्वाइन एयरफोर्स, देन ऑब्वियसली इफ दैट इज ट्रूथ, देन यू वुड नो कि अपने एयरफोर्स ने अभी रिसेंट क्या मिशन किया था, एटलीस्ट चीफ है कौन, करते क्या है हम. तो दीज आर इंटरलिंक क्वेश्चंस. अगर आपका कॉन्वर्सेशन इस तरीके से जाएगा वेर इन यू आर शोइंग कि मैं बहुत ही कीन हूँ फॉर द एयरफोर्स और मे बी आर्मी और इंडियन नेवी, यू माइट बी आस्क ओके फाइन, अभी लेटेस्ट कौन सा ऑपरेशन आपको सही लगा, तो दैट मेक्स सेंस, राइट? दैट्स नॉट, दे आर नॉट चेकिंग योर नॉलेज, दे आर चेकिंग वेदर यू आर टेलिंग द ट्रूथ और नॉट. फाइन, सो इसे बिल्कुल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस नहीं पूछते, बट अगर कॉन्वर्सेशन उस डायरेक्शन में जा रहा है, इफ यू आर मेकिंग प्रॉम्प्टिंग समथिंग, दे माइट फैक्ट फाइंड इट सिंपल. एंड दूसरी जो फैक्ट फाइंडिंग आपका बैकग्राउंड चेक होता है, इज ऑल टू डू विद योर एजुकेशनल बैकग्राउंड, एवरीथिंग एल्स. बट कोई ये नहीं चेक करने जाता कि अगर आपने बोल दिया कि फॉर एग्जाम्पल कि मैंने बहुत लेक्चर्स दिए हैं, ये क्या वो क्या है, तो उनको सच या झूठ पता चल जाएगा बिकॉज देर आर सो मेनी राउंड्स अराउंड इट. वो पता चल जाएगा, बट नो बडी इज गोइंग टू क्रॉस चेक इट, आपके कोई सर्टिफिकेट्स नहीं देखेगा उसके लिए. बट दैट्स द एम ऑफ बीइंग इन SSB. आपकी पर्सनैलिटी सामने आ ही जाती है वहां पर, इसीलिए आई कीप सेइंग सच बोलो. अगर आप कीन हो तो वो कीननेस दिखनी चाहिए आपके कंडक्ट में भी, एंड वो एक्चुअल होनी चाहिए. आप बोल रहे हो कि आई एम अ सुपर बैडमिंटन प्लेयर, तो बैडमिंटन गेम के रूल्स पता होने चाहिए ना आपको, अगर आप खेलते ही हो तो इट इज एज सिंपल एज दैट. यस यस, थैंक यू करेक्ट। मैम. ऑल्सो आपने जो बैडमिंटन वाली बात बोली, लाइक आई हैव नॉट प्लेड बैडमिंटन और समथिंग लाइक दैट एट अ ट्रॉफी लेवल, बट आई हैव प्लेड कैजुअली. बट do they really preference someone who has played that game, or do they really prefer someone who is in the sports? Okay, see, Devesh, I'll tell you. See, playing a sports and specifically a team sport is part of a personality. See, जब आप एक टीम स्पोर्ट खेलते हो, आप बहुत टीम बिल्डिंग, काफी ट्रेट्स डेवलप करते हो. तो यस, व्हेन यू से दैट आई हैव प्लेड बास्केटबॉल, तो वो आयु को इनडायरेक्टली ये समझ में आएगा कि यू हैव दिस ट्रेट्स, टीम बिल्डिंग, कोऑर्डिनेट कैसे करते हैं एक दूसरे से, वो सब चीजें ट्रेट्स हैं आपके अंदर. बट इट डज नॉट मीन कि जिसने बास्केटबॉल नहीं खेली है, अगर इफ ही और शी इज एबल टू डेमोन्स्ट्रेट कि मैं भी ये कर सकता हूँ, टीम कोऑर्डिनेशन मेरी पर्सनालिटी में है, तो दैट वुड नॉट मैटर अ लॉट, बट थोड़ा इजी हो जाता है टू बैकअप योर ट्रेड्स व्हेन यू आर इनटू स्पोर्ट्स, क्योंकि स्पोर्ट्स में बहुत
रेजिलियंस, मेंटल पेशेंस एंड ये रहता है, तो आई वुड रिकमेंड इफ यू आर एसएसबी एस्पिरेंट, please get into a team building sport also. That would help you, not help you for the SSB, help you to build that personality. So very relevant thing you asked, Devesh, but it has no relevance when it comes to अगर आप नहीं भी खेलते हो, but if you are worthy of being an officer, you will be an officer. Thank you so Yes. much, ma'am. Okay. Thank you, brother. Thank you for asking this question. I hope you learned, and you will work upon these things, and then you will make it very soon. है ना? If you have SSBs remaining, please work upon the advice that is being given by ma'am, and I'm sure you will make it. All the best. Okay, Thank you so next much. question. That is the last question that I'll be taking, guys. That question will be coming from Vinay. Vinay ने काफी देर से हाथ ऐसे raise किया हुआ है, मैम. So Vinay, can you please ask your question? You can unmute yourself. Vinay. Yes, sir. Yes. Uh, Good evening, ma'am. Good evening, sir. Good Good evening. evening, Vinay. Ma'am, I'm Vinay Kumbhar from Karnataka. I'm basically doing computer science engineering in Gupta Institute of Technology. And by coming second year, I have figured out that means I wanted to join armed forces. So here means how much I have to focus on academics and the preparation towards it. Okay. So Vinay, the thing is, see, I'll answer it in two sections. Firstly, you are into an academic zone. So yes, I would say, see, to appear for an SSB, 60% is the, benchmarking. If you have 60%, then you can appear for the SSB. But I'll tell you what, if you are into some course, then if you have a good understanding of the subject, अगर आप एसएसबी में जाके ये बताओगे that I was doing computer science engineering, बीच में I figured out, that's completely fine. But still you figured out that you want to join armed forces, you cannot leave a mission that you have already been into. तो उसको ढंग से closure करके you will go ahead, right? So that is a part of, your mindset that will be conveyed. If you say, like the way you asked me the question, so you are feeling like कि अब इस पे मेहनत करनी है कि नहीं करनी because I am into this course, I have to join armed forces. So the thing is, you have already joined in, you have invested yourself there, financially भी है. I wouldn't say कि you have to get a gold medal, university top करो, but please do justice to what you are doing. Because see, being an officer also, at times when you are leading something, तो मिशन में हो सकता है आपका खुद का इंटरेस्ट, मतलब आपको अपील कर रहा हो चाहे नहीं कर रहा हो, but you know that for the greater good that matters, so you have to give your 100% to it, Vinay, right? So 60% ले लोगे आप, अपीयर कर लोगे एसएसबी में, बट वो जो माइंडसेट आप छोड़ाओगे ना वहां पर, लाइक यस दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, लेट मी नॉट पे एनी अटेंशन टू इट, दैट इज नॉट गुड फॉर अ फ्यूचर ऑफिसर, आई एम टेलिंग यू. So do justice to this. Meanwhile, prepare for your SSB also. For that you can Yes, ma'am. for that you can come to me. Don't worry. I Yes, sir. always Of course, sir. yeah, I always say Thank them. you, ma'am, for the Yeah, Thank thank you, Vinay. valuable. थैंक यू ब्रदर, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, एंड आई थिंक ये क्वेश्चन का मैं वेट कर रहा था कि समवन आस्क आस्क कोई तो पूछे. सो मैम, एक ना कॉमन मिथ है, एंड आई थिंक दैट वी कंक्लूड द कॉन्वर्सेशन विद दिस, एंड मेरा एक क्वेश्चन आएगा अभी मैम मैम से, कि बच्चे सोचते हैं कि हम ना ऑफिसर बन जाएंगे, फौज की तैयारी करेंगे, एसएसबी देंगे तो हम पढ़ाई से पीछे छूट जाएगा हमारा, फौज में तो जाके मौज हो जाएगी, पढ़ाई तो करनी नहीं पड़ेगी. ये क्वेश्चन मैं चाहता हूँ ये आप आंसर करो, एंड देन दिस क्वेश्चन आई आस्क टू all of my seniors who come on my show, or we whenever we had a chat, or we organize a session like this, कि ये myth आप तोड़ो. This will be from the wing commanders होने का तो साइड, कि यार ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तुम लोग पढ़ाई करो, पढ़ाई के बिना फौज में भी सरवाइव नहीं कर पाओगे आप. बिकॉज बिकॉज मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो वो मैं पढ़ाता हूँ तो इंग्लिश, जी के, रीजनिंग में थे, चार ही सब्जेक्ट्स हैं. आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियर, आई वर्कड माई लाइक हेल इन माई इंजीनियरिंग. इफ यू जस्ट आस्क मी एनीथिंग अबाउट द एयरक्राफ्ट, मैंने मैम नोट्स बना रखे थे, इतनी कॉपी भर दी थी जब मैं एफ कैट की तैयारी करता था, बिकॉज आई वाज सो सो डीपली इनटू इट. तो पढ़ना तो पड़ेगा. और मुझे Okay. किसी ने मुझे बताया था, भाई देख बिना पढ़े तो नहीं होने वाला, एसएसबी के लिए भी साइक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इंटरव्यू की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अंग्रेजी पे काम करना पड़ेगा, तो बहुत मेहनत लगती है. तो आप बताओ, आप अंदर रहे हो. Yeah, Shivam, I will say, and a very valid question. So I have two younger brothers. Both of them are, in Air Force.
हम्म। तो द यंगेस्ट वन नो, उसका भी ये माइंडसेट था कि बहुत पढ़ाई कर ली मैंने एंड लाइक आई विल गो टू आर्म्ड फोर्सेस, आई विल फाइट वॉर्स, लेकिन पढ़ना नहीं पड़ेगा. बट हम्म। यू नो, व्हेन यू आर इन सच अ सर्विस जहां पर यू हैव टू कीप योर सेल्फ टेक्निकली एंड स्ट्रेटेजिकली सो एडवांस्ड दैट यू हैव टू कोप अप विद योर एडवर्सरीज. तो Yes, यहाँ तो हर सेकंड में नई टेक्नोलॉजी आ रही है, राइट? सो एज अ लीडर आपको जितना खुद को अपडेट रखना पड़ता है, दैट इज अनदर लेवल. एंड आपको लगेगा ही नहीं, लाइक मैंने स्टूडेंट लाइफ में इतनी मेहनत नहीं की थी, बट आफ्टर कमिंग टू फोर्सेस एंड वो it gets into your your being also. Like I'm MTech now and I am MBA and I'm already enrolled for PhD. I've done so many certifications because ये आप जो मेहनत करने वो सिखाती है फौज आपको. इट्स नॉट दैट यू विल नॉट डेवलप इट. और ये जो अगर सोच के जाओगे ना कि ये बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा, फौज में आपको हर वो चीज करनी पड़ेगी दैट बिल्ड्स अप योर नॉलेज लेवल, दैट बिल्ड्स अप योर माइंडसेट एंड दैट बिल्ड्स अप योर रेजिलियंस. तो बिल्कुल अगर आपको ये लगता है कि पढ़ना नहीं पड़ेगा, दैट्स अ बिगेस्ट मिथ आई वुड से. मैं तो वो सोच के नहीं गई थी, बट यू आस्क माय यंगेस्ट ब्रदर, ओके. नाउ ही कीप स्टडिंग वो चाइना क्या कर रहा है एंड लाइक व्हाट पाकिस्तान इज हैविंग, हाउ इंटरनेशनल मार्केट इज, एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड फॉर आर्म्ड फोर्सेस लीडर, राइट? तो पढ़ना पड़ेगा, ये बिल्कुल सोच कर मत जाना, पढ़ना नहीं पड़ेगा एंड दैट्स फॉर योर गुड, राइट? एग्जैक्टली मैम. तो मेरा भी ये था. एंड देन यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूंगा. जैसे मैम ने भी बोला, मैम ने मास्टर्स किया एयरफोर्स में जाके ही किया अपना एमटेक. तो फौज आपको पढ़ने का मौका बहुत देती है यार. आपको प्रीमियर इंस्टीट्यूशन से आपको एमटेक करने का मौका मिलेगा. अब आईटी में कभी जाने का सपना अगर रहा होगा आपका, तो आप आईटी से एमटेक कर सकते हो. आपको इतना आर्म फोर्सेस देती है मौका. मैम मेरा बड़ा ये था, बिकॉज आई वॉज अ टायर 3 कॉलेज चैप. मैंने बहुत छोटे से कॉलेज से की स्टेट लेवल का जेई, जो हमारा यूपीसी होता था, यूपीटीयू का, वो निकाला. छोटा कॉलेज था, प्लेसमेंट वगैरह कुछ था नहीं. तो मैंने सोचा था मैं फौज में जाऊंगा, अगर मैं पायलट नहीं बन पाया तो मैं एरोनॉटिकल में जाऊंगा. आई विल जस्ट डू माई एमटेक. मेरे को पापा पे लोड नहीं डालना, मैं अंदर जाके पढ़ाई करूंगा. मेरा फिक ये था. हालांकि हुई नहीं चीजें उस हिसाब से, पर प्लानिंग कुछ ऐसी थी. बिकॉज मैंने ये सारी चीजें पढ़ रखी थी कि बिकॉज वंस यू गेट इन साइड द फौज, फौज गिव्स यू एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज. अब बिल्कुल. आपको. सी वंस यू सर्व योर नेशन एंड अगर आप अच्छा कर रहे हो फौज के अंदर, देन इट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी. दे गिव यू अपॉर्चुनिटीज टू ग्रो, राइट? एंड ये हर फील्ड में है शिवम. इफ यू एक्चुअली पुट इन योर हार्ट एंड सोल, तो आपको मौके मिलेंगे ग्रो करने के लिए. तो एज यू सेड, आईआईटी में नॉर्मली नहीं जा सकते हम, बट इफ यू आर डूइंग गुड इन फोर्सेस, आप दिल लगा के वहां काम कर रहे हो, देन यू हैव ऑल द चांसेस टू गेट इन टू गुड इंस्टीट्यूट्स एंड pursue your education. यस, बिकॉज आई पर्सनली सीन ऑफिसर्स जो आईटी से एमटेक उन्होंने किया, मतलब नेक्स्ट लेवल इंजीनियरिंग में. मतलब उनके साथ आप बैठ जाते हो ना, तो फिर टेक्नोलॉजी की ऐसी ऐसी बातें होती हैं जो आप सोच नहीं सकते. नेक्स्ट लेवल टेक दे टॉक. True, एंड true. मेरा मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है. आई वॉज Sure. टॉकिंग टू द दिशा सेल, द पब्लिसिटी सेल ऑफ इंडियन एयरफोर्स. उनके डायरेक्टर से बात हो रही थी मेरी. एंड आई वुड नॉट नेम द ऑफिसर बिकॉज ही इज अ सर्विंग ऑफिसर. कि सर ने बोला कि यार यू मेक सम कंटेंट अराउंड एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग बिकॉज यू आर एन इंजीनियर योरसेल्फ एंड देयर इज अ शॉर्टेज. क्योंकि आपने देखा होगा अभी रिसेंटली एफकेट हुआ था, और जो 139 कट ऑफ थी एरोनॉटिकल के लिए, उन्होंने कट ऑफ को 120 पे लेके आए थे, गिराया था. क्योंकि बीटेक वाले बच्चे जा ही नहीं रहे हैं. तो वर्क प्रोफाइल अगर मैं आपको बोलूंगी मैम, एक ना समरी दे दो बस थोड़ी सी, कि एरोनॉटिकल इंजीनियर की जॉब प्रोफाइल, वर्क प्रोफाइल कितना, मतलब चैलेंजिंग है, टेम्पटिंग है. why they should join as an aeronautical engineer in the Air Force from the perspective of an engineer only in IAF. Okay, so see Shivam, first, see, पहली चीज तो like you also mentioned, when you go there as an engineer, तो आपका जो एक engineer का the premium dream of a true engineer is to do or study or research from IITs, right? Yes. उससे बड़ी इंस्टीट्यूट से तो हम पढ़ने का नहीं सोचते ना, unless until there is some other personal aspect to it. तो वो मौका आपको फौज देगी. दिस इज ऑन अ वेरी पर्सनल बेस आई एम टेलिंग. Otherwise, if you go there as an aeronautical engineer, the true essence of engineering, क्योंकि आप, आई वुडेंट से कि बाहर नहीं होता होगा, बट ट्रू एसेंस ऑफ इंजीनियरिंग व्हेन यू गो ऑपरेशंस के साथ साथ, बिजनेस डेवलपमेंट के साथ साथ, बिकॉज सी बिजनेस डेवलपमेंट जो फौज सिखाती ना आपको कि कम रिसोर्सेज में सबको साथ लेके कैसे काम निकालना है एंड
टाइम से पहले करना है, वो सब चीजें नॉर्मल कॉर्पोरेट में जाके आप नहीं सीख पाते। इट्स अ ग्रेट मॉडल फॉर लर्निंग बिजनेस डेवलपमेंट और एनी एनी काइंड ऑफ बिजनेसेस फॉर, आई एम टेलिंग यू। तो आप एज अ पर्सन, एज एन इंजीनियर एंड एज अ लीडर, आप तीनों का एमलगमेशन मिलेगा इफ यू गो टू फॉज एज एन इंजीनियर, राइट? सो वो आपको सारी क्वालिटीज इन वन गो, नो अदर इंस्टीट्यूट, नो अदर जॉब, नो अदर career can teach you this. I can tell with experience because I have been in a very senior, leading position in one of the corporate also, and I'm still leading. तो मुझे पता है ये। तो जब आप वहां पे सर्विस कर लेंगे, तो एज अ पर्सन यू ग्रो, नॉट ओनली एज एन प्रोफेशनल। और वो प्रोफेशन भी टेक्नोलॉजिकली जब फौज में सब आ जाता है, उसके बाद बाकी जगह आता है, बहुत दिस इज अ, राइट? सो आप टेक्नोलॉजिकली भी एडवांस रहते हैं, आप एज अ लीडर भी एडवांस रहते हैं, आप एजुकेशनली भी एडवांस रहते हैं, तो और क्या चाहिए लाइफ में, राइट? सो यू शुड हैव ऑल द मोटिवेशन टू गेट इनटू एयर फोर्स, आर्म्ड फोर्सेस, आई वुड से। एग्जैक्टली मैम, करेक्ट मैम। मतलब व्हेन माई प्राइम रीजन टू ज्वाइन द फौज वाज कि यार मैं पायलट बनूंगा तो मैं नेक्स्ट लेवल जहाज उड़ाऊंगा। अगर मैं एरो में गया तो मैं उन जहाजों को खोल रहा हूँगा और मेरे को मौका मिलेगा। मतलब वो एक रेंज पाने वाला काम जो होता है हमारा मैकेनिकल वालों का, वो ए ई एम थे हम तो मैकेनिकल वाले। आप ए ई एल हो, ए ई एल। तो वो था मैम। एंड इट इज अ ड्रीम कम ट्रू। आई विल इनकरेज द यंगस्टर्स। एंड आई एम 30 ईयर ओल्ड नाउ यार। व्हेन आई वाज यंग, लाइक 25 तक मौका देती है एयरफोर्स। 5 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते तुम लोगों को, बहुत सारे बच्चों को अफसर बनाया है। तो मैं अभी आप लोगों को, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, यहाँ पे सोनिका मैम भी हैं, सी हैज बीन देयर डन दैट। मैं आपको इनकरेज करूंगा आप एयरफोर्स में इंजीनियरिंग स्ट्रीम में ज्वाइन करें, बिकॉज इट विल गिव यू अ लॉट। यू विल डू जस्टिस टू योर डिग्री। यू विल एग्जैक्ट एक मतलब यू विल डू इक्वल जस्टिस टू योर डिग्री। आपने कॉलेज में 8 सेमेस्टर जो पढ़ाई करी है, दिन रात एक एक रात में जो तुमने पेपर पास करने वाली काबिलियत विकसित की है, उस चीज को अगर आप प्रैक्टिकल में देखना चाहते हो, देन एयरफोर्स गिव यू अ वेरी बेटर चांस टू डू दैट। एंड आपकी पढ़ाई भी हो जाएगी, आप एक क्लास 1 गजेटेड अधिकारी भी बनेंगे भारतीय वायुसेना के अंदर, और आप नेक्स्ट लेवल टैग से भी खेल रहे होगे। तो जो आपका ड्रीम है एज ए यंगस्टर, व्हाट यू एस्पायर फॉर, यार टैग चाहिए, बढ़िया बढ़िया मशीनों पे मैं काम करूं, एंड देन यू गेट प्राइड एंड रिस्पेक्ट ऑल्सो इन द सोसाइटी, है ना, उसको तो दैट इज अनबीटेबल आई वुड से। सो आई विल encourage यू गाइस, है ना। और ये मुझे एयरफोर्स की तरफ से ही आ रहा था कि आप ऐसा कुछ करना, तो हमने कर दिया। मैं You have बोलूंगा। done justice to the request made by that particular officer, Shivam. यस यस मैम, एंड आई विल कीप ऑन डूइंग दिस थिंग। मतलब मैं एक इंजीनियर वाला मैम, वो डीएनए आ गया, वो तो खून में आ गया। वो बीटेक तो निकलेगी नहीं बाहर हमारे अंदर से कभी भी मरते दम तक। तो वो रहता है। मेरे को जब बच्चे मिलते हैं एंड दे आर लैकिंग कि यार मेरे को टैक नहीं आता सर, मेरे को टैक के क्वेश्चन याद नहीं होते, मैम मैंने यूट्यूब पे ना मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स के जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं ना ब्रांच वाइज, मैंने सब पे वीडियोस बना के डाली हुई है, सो दैट दीज गाइस कैन एक्चुअली सी कि ये पूछा Great. जाता है। मैंने इतना इनके लिए किया हुआ है। इनको बस जाना है, दे जस्ट नीड टू सी, एंड ड्यूरिंग द जर्नी इफ दे गॉट स्टक, आई एम ऑलवेज असेसिबल, आई एम जस्ट अ कॉल अवे विद दीज गाइस। तो मैंने Great. इतना इजी कर दिया इन लोगों के लिए। एंड मैं हर दिन कोशिश करता हूँ कि टैग पे, वेपन्स पे मैं वीडियोस बनाता रहूँ और इनको लेमन लैंग्वेज में समझाता रहूँ। सो मैम यही था आज का कन्वर्सेशन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी, मजा आया बहुत। एंड एक अलग तरीके का वाइब था, अलग तरीके की एनर्जी थी। एक हार्ट टू हार्ट टॉक हुआ। 7 से 8 बच्चों ने यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे। उन बच्चों को भी मैं बोलूंगा थैंक यू सो मच भाई लोग, आप लोगों ने सवाल पूछे। आई होप आपके जो जूनियर्स हैं, योर पीयर्स, दिस वीडियो विल बी देयर ऑन यूट्यूब फॉर लाइफ, एंड दे विल कीप ऑन गेट गेट इंस्पायरिंग। एंड देन मैम की जर्नी के बारे में कभी और विस्तार पूर्वक हम बात करेंगे मैम के साथ। अगेन ऑफलाइन मोड में हम पॉडकास्ट करेंगे बहुत जल्दी और आपके सामने लाएंगे, सो दैट वहां पे आपको विंग कमांडर सोनिका तवन मैम के बारे में और भी बातें जानने का मौका मिलेगा। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच फॉर Thank you, ज्वाइनिंग। Shivam. Thank you, everyone out here. Thank you for having me. And I had a great time here. Okay. And I really wish all the best to every one of you. But just start living like an officer. Okay. Then you will, like, SSB बहुत छोटी चीज लगेगी to crack. Okay. Just have that mindset with you. And for which Shivam is also helping you build that mindset. And just polish whatever you have. And, just groom it to be. An officer who would be donning a defense uniform soon. So all the best, everyone. Thank you. Guys, everything begin with the end in mind. Keep your goal here. I'll see you in the uniform soon. Jai Hind. Jai Hind.